हम्म, जी, कोई मैडम आज मेरी क्वेश्चन? प्रेजेंटेशन थी डॉक्टर तस्निया आई नो। और डॉक्टर जी अनीला जी, की ना। तो मैम मैं बिल्कुल ड्यूटी ठीक। पे हूँ अभी, फिर वो राउंड जो है ना मेरा 9:30 तक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो कर ले फिर आपका पहले कार्डियक जी डिजीज जी इन मैम जी। प्रेगनेंसी। कोई यस सिनेरियो है मैम। आपके पास? नहीं मैम आप दे दें। Okay, so patient is primary gravida and she's at 32 weeks of gestation and she is a known cardiac patient with a known cardiac disease of mitral valve stenosis and she has got shortness of breath. And now how will you manage her? Ma'am, after mutual introduction and confirmation of the findings provided to me, I would like to ask my patient about her, how long she is married and what was her last menstrual period, and uh, since when she's a known case of mitral stenosis, and is she in contact with her cardiologist? When was her last visit to the cardiologist? And is she on any regular medications? Um, um, is she on any regular medications? Then I would like to ask her about her presenting complaint, that is shortness of breath. Um, uh, Shortness of breath, and is this shortness of breath is at exertion, or on ordinary physical activity, or at sitting position and lying down? Does she has any associated symptoms of palpitation, any bluish discoloration of lips, chest pain, any history of fever, or any infection, any history suggestive of infection? Also, I would like to ask her how was her this pregnancy. Any history of raised blood pressure during this pregnancy, or any history of decreased hemoglobin during this pregnancy, or has she received any parenteral or blood transfusion therapy during this? Also, I would like to ask her any known respiratory disease in her, or allergic history. Then I will ask her about any complications during this pregnancy, and what she has done for this complaint, any previous surgical history, or family history of diabetes, hypertension, or any cardiac disease, any allergies to the drug, any known allergies, and sport at home. Then I will move towards the examination, including her general physical, her BMI, including height and weight, her pulse for rate, rhythm, and volume, and her blood pressure, especially for raised blood pressure. Then I will look for any signs of anemia, thyroid examination, and I would like to do her chest examination for any added sounds, or any crepitations in the chest, and then cardiovascular examination, including her location of the apex beat, any added heart sounds, and I will palpate all the valve areas, and auscultate for any presence of the murmur. Then I will move toward the abdominal examination, including inspection of the abdomen for any visible scar mark, or any finding, and symphysiofundal height for the lie, presentation, estimated fetal weight, and amount of liquor. Then I will move toward the investigations. खैर, 2 मिनट इन्वेस्टिगेशन पे बात करते हैं। असल में आपका राउंड शुरू हो जाना, आपने चले जाना है, इसलिए मैं साथ साथ ही करेक्ट करूँ। देखो, बहुत ज्यादा मजा नहीं आया फ्रेंकली।
उसकी वजह ये है कि अब ये एक बात तो आपने याद रखना है कि कार्डियक डिजीज एक ऐसा टॉपिक है कि अगर एग्जाम में किसी स्टेशन पे आ जाए तो या तो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे या आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। ये वो चीज है जिसमें आपने अपनी बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज शो करनी है एग्जामिनर को। एंड ऑफ कोर्स विदाउट दिस थ्योरेटिकल नॉलेज आप अदरवाइज भी अपने पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते हो। इसके अंदर इस केस में थोड़ी सी आसानी इसलिए हो गई, हम हमेशा अपनी क्लास में जो पहला केस करते हैं वो थोड़ा सा बेसिक करते हैं केस। उस इसमें आसानी ये हो गई क्योंकि इसमें मैंने बता दिया कि नॉन कार्डियक के पेशेंट, उसका पहले ही पता है कि माइट्रल स्टेनोसिस है। सो इसके अंदर जब आप कार्डियक की हिस्ट्री ले रहे हो, अपनी कार्डियक की हिस्ट्री को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो, डोंट मेक इट वेरी हैप्पैजेड। इसके अंदर ऑफ कोर्स दो तीन चीजें अभी तो शी इज हेयर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, माइट्रल स्टेनोसिस विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपकी सारी नॉलेज काम आनी चाहिए। माइट्रल स्टेनोसिस से अगर लेफ्ट हार्ट में कहीं ब्लॉकेट, इट्स अ वेरी बिग थिंग, लेफ्ट हार्ट का अगर डिसफंक्शन कहीं आ रहा है तो ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसको तो कोई डिसफंक्शन कर रहा है एमएस उसको। तो अगर एमएस उसका डिसफंक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं लंग्स या पल्मोनरी एडीमा और वो चीज उसकी इफेक्ट हो रही है। तो पहले तो इस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को बहुत ज्यादा एलैबोरेट करो, यू नीड टू रूल आउट इन योर फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ योर हिस्ट्री कि क्या ये पेशेंट मेरा आमतौर पे मैं बात करूं या शी शुड बी इमीडिएटली शिफ्टेड टू सीसीयू, राइट। नंबर वन, क्योंकि लेफ्ट हार्ट ब्लॉक अगर हो रहा है उसका और प्रेगनेंसी में तो ये तो बहुत ही बड़ी मॉर्बिडिटी है ना। तो इसको तो आपने इतना लाइट उस तरह तो सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को अच्छी तरह रूल आउट करो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, व्हाट डज शी एग्जैक्टली मीन बाय दैट। कि क्या उसे बैठे बैठे ही नहीं बैठा जा रहा है, क्या उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लो ही जा रही है, साइनोसिस हो रहा है, या उसके पल्मोनरी एडीमा के कोई उसको सिम्टम्स हैं, और फिर हम एग्जामिनेशन में उस चीज को साथ साथ रूल आउट करेंगे। उसके बाद जब आपने जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसको रूल आउट कर लिया तो यस, इसके अंदर बिकॉज प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इस तरह की थी कि पहले मैंने इसी को रूल आउट कराया, वरना हम क्रॉनिक डिजीज को ही सबसे पहले लेके चल रहे थे। फिर आपने कार्डियोलॉजिस्ट का जिक्र, माइट्रल स्टेनोसिस है उसके लिए वो क्या क्या ले रही है ऑलरेडी, इफ शी इज ऑलरेडी ऑन मेडिसिन, क्या ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इवेंट उसको पहले हुआ है, हैज शी ऑलरेडी बीन लेबल्ड एज द ग्रेड 4 कार्डियक डिजीज पेशेंट, या वो फर्स्ट टाइम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आई है, क्या पता वो कुछ दिन पहले सीसीयू से ही डिस्चार्ज होके गई हुई थी एंड शी इज ऑलरेडी हाई रिस्क केस कंसिडरिंग ग्रेड 4, जो हमारी एनवाईएच क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से वो कोई ग्रेड 4 का केस है। तो तो वो चीज आपने वहीं पे ही पहले उसमें रूल आउट करनी है, और फिर कार्डियक सारी हिस्ट्री, क्या मेडिसिन ले रही है, मतलब शी इज कंप्लायंट और नॉट, और शी इज ऑलरेडी अ कॉम्प्रोमाइज पेशेंट डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन, क्या वो लेसिक्स के ऊपर है, डाइजॉक्सिन पे, किसके ऊपर है। अच्छा, उसके बाद आपने उसके बाद कहीं जाके यस जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं जो इन चीजों को बढ़ा देते हैं, जो कि कार्डियक पेशेंट में अदरवाइज नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में, जैसे हम कहते हैं नीमिया है, हाइपरटेंशन और इन्फेक्शन, ये तीन चीजें हार्ट पे और ज्यादा लोड बढ़ाती हैं, तो हम उसको साथ साथ रूल आउट करते हैं कि इसके साथ तो नहीं कोई एसोसिएटेड चीज ऐड हो गई कि एनीमिक हो गई जिसकी वजह से हार्ट और इफेक्ट हो गया, या फिर हाइपरटेंशन है, या फिर कोई इन्फेक्शन कंटिन्यूअसली उसका चल रहा है, या सेप्सिस वाली चीज चल रही है जिससे उसकी बॉडी पे स्ट्रेस है, और ओवरऑल हार्ट को ज्यादा फंक्शन करना पड़ा है जिसकी वजह से उसका इफेक्ट आ रहा है। और उसके अलावा ये कि हमेशा हम प्री प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीनेटल पीरियड में पेशेंट के मॉर्बिडिटी लेवल या खुदा ना खासा मोर्टेलिटी के चांसेस या चांसेस ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके अंदर हम कुछ रिस्क फैक्टर, जिसमें कहते हैं ना कि 5 रिस्क फैक्टर्स हैं कि कहीं पेशेंट का पहले कभी कोई कार्डियक डिसफंक्शन जो कि इस पेशेंट में है, ऑफ कोर्स माइट्रल स्टेनोसिस है, या फिर उसको कभी रिथमिया रहा हो, या उसको एमआई रहा हो, या उसका अब इसके अंदर तो हमारा पहले ही लेफ्ट हार्ट ब्लॉक आ रहा है जो कि एक और मॉर्बिडिटी ऐड हो गई है। सो और फिर ये कि क्या वो ग्रेड 3 या ग्रेड ग्रेड 2 से अबव, यानी 3 एंड अबव, 3 या 4 कैटेगरी तो नहीं लेबल हुई हुई। अगर ये इसके अंदर बकायदा कैटेगराइजेशन है कि इन 5 कॉम्प्लिकेशंस में से अगर उसमें ऑलरेडी कोई भी नहीं है तो लेस देन 5% चांस है कि शी एंड अप इन अ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर एक है तो 30% चांस है कि मॉर्बिडिटी होगी। अगर इन फैक्टर्स में से दो या दो से ज्यादा है तो फिर 70% चांस है कि शी विल एंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस, और इस पेशेंट के अंदर हमें नजर आ रहा है। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह कि नॉन एमएस की पेशेंट तो है, माइट्रल स्टेनोसिस तो उसको है, लेकिन क्या ये एमएस उसका करेक्टेड है या नहीं, क्योंकि करेक्टेड एमएस तो उसको फॉरन लो रिस्क पेशेंट पे ले जाएगा ना। जो लो मॉडरेट हाई रिस्क पेशेंट्स की कैटेगरीज भी हैं हाई रिस्क इसके अंदर, कार्डियक पेशेंट के अंदर ना इट्स ऑल अबाउट थ्योरी।
आपने कुछ चीजें तो याद कर लेनी है, और अपने हर कार्डियक के स्टेशन में आपने उन चीजों को अप्लाई करना है, चाहे वो पेशेंट कार्डियक डिजीज एमएस की है, एट्रियल वाल्व की है, या वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, या वो जो भी है, आपने ये चीजें हर कार्डियक पेशेंट पे ऐड करनी है। एक तो सबसे पहले ये कि आपका पेशेंट कौन सी ग्रेड, न्यूयॉर्क क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो कौन सा ग्रेड की डिजीज है, ग्रेड 1 2 3 4 में से, राइट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बाय द एंड ऑफ योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन यू शुड हैव लेबल्ड योर पेशेंट कि ये मेरा इस ग्रेड का पेशेंट है, राइट, नंबर वन। नंबर टू, आपको लो, मॉडरेट और हाई रिस्क पेशेंट्स ऑफ कार्डियक डिजीज का पता होना चाहिए। हमें पता है कि लो रिस्क में सारे जो करेक्टेड वैल्वुलर डिजीजेस है वो लो रिस्क में आ जाते हैं। छोटे मोटे करेक्टेड डिजीजेस, एसिम्टोमेटिक, वेरी माइनर, ये जो रोमेटिक हार्ट डिजीज से रिलेटेड जो होते हैं वो सारे, जो कि अगेन करेक्टेड हो, जो बहुत हाई ग्रेड की डिजीज ना हो। मॉडरेट के अंदर भी दो तीन उन्होंने कैटेगरीज की हुई है, मेरा ख्याल है मार्फन सिंड्रोम है, और दो और है, वो आप देख लेना। और जो हाई ग्रेड है उसके अंदर सारे खतरनाक वाले, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और ईसन मिगर सिंड्रोम, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, अनकरेक्टेड एमएस, एओर्टिक वाल्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये सारा कुछ जो है वो हाई ग्रेड में आ जाता है। तो एक तो आपको माइल्ड, मॉडरेट और हाई ग्रेड का पता होना चाहिए रिस्क का। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन में आपको अपनी पेशेंट की ग्रेडिंग का पता होना चाहिए। उसके अलावा आपने ये जो मैंने आपको पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द मॉर्बिडिटीज, अगर एंटीनेटली या प्रीनेटली पेशेंट के अंदर ये जो पांच मैंने आपको बातें बोली, जिसके अंदर ग्रेड 3 एंड अबव डिजीज है, साइनोसिस है पेशेंट को, या फिर उसको रिदमिया हो चुका है पहले, या कार्डियक डिसफंक्शन है, या फिर उसका कोई और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन पहले से हो चुकी है पेशेंट को, तो और फिर लेफ्ट हार्ट ब्लॉक, ये इनमें से अगर ये वो कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर एंटीनेटली या प्रीनेटली उसको पहले से अगर कोई इसमें से नहीं हुई तो लेस देन 5% चांस कि शी एंड अप इन वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, एक है तो 30% चांस, और अगर दो या दो से ज्यादा है तो मोर देन 70% चांस है कि शी विल एंड अप इन अ कॉम्प्लिकेशन। सॉरी, मैं आप सबको म्यूट करूंगी जरा, ठीक है। तो वेन एवर यू आर टेकिंग हिस्ट्री इन अ पेशेंट, जिसने अनम्यूट करके बोलना वो अनम्यूट करे। सो वेन एवर यू आर टेकिंग हिस्ट्री इन अ पेशेंट ऑफ अ कार्डियक डिजीज, उसमें आपने अपनी ये तीन चार चीजें, ग्रेडिंग, माइल्ड, मॉडरेट, हाई रिस्क, और ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, और हाँ, कि कोई एडेड रिस्क फैक्टर तो नहीं है, कहीं वो पहले ही अनीमिक तो नहीं है। पता चले कि एमएस की पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आई है और साथ उसका HB8 है, तो उसकी वजह से हार्ट के ऊपर और अफेक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज एग्रेवेट होगी, या वो हाइपरटेंशन या इन्फेक्शन, अनीमिया, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, ये हार्ट को और ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट कर देता है। तो पहले ही अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसके लिए ये तीन चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसकी जिंदगी में। तो ये आपने चार पांच चीजें हर कार्डियक पेशेंट की हिस्ट्री में डाल देनी है। उसके बाद उसकी जो कार्डियक, इफ शी इज अ नोन केस ऑफ अ कार्डियक डिजीज, उसका एमएस है या जो भी उसको प्रॉब्लम है, फिर उससे रिलेटेड डिटेल्ड कि अब तक उसका, एक तो ये कि वो एमएस हुआ क्यों, क्या वो रिमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से हुआ था या वो कंजेनिटल हार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आप फीटल ट्रांसमिशन को भी तो रूल आउट करोगे ना। अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो फिर आप फीटल एको की तरफ भी ध्यान जाएगा। अगर वो रिमेटिक हार्ट डिजीज है तो देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग अ फीटल एको डन। तो आपने उसकी जेनेटिक ट्रांसमिशन को भी, बिकॉज शी इज प्राइमरी ग्रेविड है, उसके पिछले बच्चों की तो कोई हिस्ट्री है नहीं कि हम पता करें कि कोई जेनेटिकली हार्ट डिजीज है या नहीं। तो आपने कि एमएस उसको हुआ क्यों, क्या वो कंजेनिटल था या वो रिमेटिक हार्ट डिजीज थी। फिर व्हाट शी डायग्नोज कैसे हुआ था जिंदगी में, डायग्नोस, वो डायग्नोसिस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त क्या हुआ था, वो कोलैप्स हुई थी या नहीं हुई थी या क्या था, और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट, बिकॉज एमएस के अंदर तो वेलवोटमी हुई होती है, या वो विच इज जो बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है या यू नेवर नो, कोई मैकेनिकल हार्ट का वेल्व लगाओ या कुछ भी। सो आपने वो चीज इतनी अच्छी तरह रूल आउट करनी है, क्योंकि इससे आपकी इन्वेस्टिगेशंस उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि आपने उसकी जेनेटिक ट्रांसमिशन को देखना है कि नहीं देखना है, इस पे आपकी पूरी मैनेजमेंट डिपेंड कर रही है। अगर वो करेक्टेड केस ऑफ एमएस है तो फिर तो सारे मसले ही हल हो गए, फिर तो वो एक लो रिस्क पेशेंट है ना। फिर तो आई एम श्योर उसको ये शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ भी प्रोबेबली हार्ट के डिजीज से हो नहीं सकती, क्योंकि जो लो रिस्क होते हैं उसके अंदर तो वैसे ही हमारे पास मॉर्बिडिटी के बड़े कम चांसेस होते हैं।
तो वो आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली देख लेना है। तो ये चीजें अगर आप रूल आउट ही नहीं करोगे तो हाउ आर यू गोइंग टू पास द एग्जाम? कार्डियक पेशेंट के अंदर सीधी सीधी या सिंपल सिंपल हिस्ट्री आप ले ही नहीं सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो है ये सारा आपने, अच्छा फिर व्हाट मेडिसिन शी इज टेकिंग? वी नो के मोस्टली दीज पेशेंट्स आर ऑन डायूरेटिक्स और लेसिक्स के ऊपर ये होती है। और सो इवन इफ शी इज ऑन लेसिक्स या शी इज ऑन एनी मेडिसिन लाइक मे बी डाइजॉक्सिन पे, जिस भी मेडिसिन के ऊपर ये है, उसकी टेरेटोजेनिक नेचर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और फिर ये भी कि इट मीन्स के विद मेडिसिन भी ये पेशेंट जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि इसको भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। सो दिस इज रियली नॉट अ गुड थिंग। तो ये सारा, अच्छा उसके बाद एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इतना सीधा नहीं होता कार्डियक पेशेंट का, वेरी फ्रैंकली। आप इतने आराम से इसको नहीं निकाल सकते S1 S2 कह के। इस तरह का एग्जामिनेशन तो शायद हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एनी पेशेंट में बोले। इस पेशेंट के अंदर तो आपने उसकी वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर, उसका उसके हार्ट फेलियर को भी रूल आउट करना है एग्जामिनेशन में, पल्मोनरी एडिमा को भी रूल आउट करना है, आपने जेवीपी को लेके चलना है, आपने उसकी चेस्ट एग्जामिनेशन, कार्डियक एग्जामिनेशन ऐसे करना है जैसे कार्डियोलॉजिस्ट करता है। बेशक हमें फाइंडिंग्स पे हो या ना हो, लेकिन आपको इसका जो है हार्ट का और पूरा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द कार्डियक डिजीज ऐसा हो कि जैसे एक कार्डियक फिजिशियन पेशेंट को एग्जामिन करता है। सो आप इस चीज को लेकर यूं नहीं चल सकते कि सीधा सीधा तो चल नहीं सकते। सो आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एंड देन ऑफ कोर्स आपने इसके अंदर एनीमिया को भी उतना ही रूल आउट करना है। आपने इसके अंदर कोइलोनिकिया भी देखना है, पैलर भी देखना है, आपने आईज में भी देखना है, आपने मुंह खोल के उसका साइनोसिस और एनीमिया दोनों देखना है। उसके बाद आपने उसके जेवीपी मिस नहीं करना, आपने इसका सेक्रल एडीमा, पल्मोनरी एडीमा और पीडल एडीमा, इन सारी चीजों को चेक भी करना है और कमेंट भी करना है। फिर जो जो कार्डियक एग्जामिनेशन है, मैं बहुत सारी क्लासेस में वैसे बता भी चुकी हूँ, लेकिन आपने कार्डियक एग्जामिनेशन यू विल स्टार्ट फ्रॉम इंस्पेक्शन एक्चुअली। इंस्पेक्शन से वो चीज स्टार्ट होगी। और इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि आपने पहले उसे एक्सपोज करके आपने उसका विजुअल मरमर देखना है। कई दफा वो इतना मरमर उसका होता है कि वो आपको नजर आ रहा होता है, क्योंकि मरमर की भी एक कैटेगरीज है कि वन विच इज सीन एंड देन वन विच इज पेल्पेटेड एंड देन वन विच इज ऑस्कल्टेटेड। उसके हिसाब से इसके भी डिग्रीज होती हैं, ग्रेडिंग होती है मरमर की। तो आपने पहले विजुअल यानी कि इंस्पेक्शन पे मरमर देखना है। उसके बाद आपने उसका कोई स्कार मार्क, यू नेवर नो शी हैड अ कार्डियक सर्जरी, उसकी कोई ओपन हार्ट सर्जरी भी जो बचपन में हुई है, शी इज नॉन केस ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज की वो पेशेंट है, तो क्या पता उसके कोई कोई हार्ट की सर्जरी हुई है। तो आपने उसके स्कार मार्क्स देखने हैं चेस्ट के ऊपर, आपने उसका विजुअल मरमर भी देखना है। उसके बाद आपने पेल्पेशन करनी है, उसमें टेंडरनेस देखने के बाद आपने उसका पेल्पेबल मरमर देखना है, क्योंकि जो मरमर होता है वो उसकी एक ग्रेड ये भी होता है कि जब आप हाथ रखते हो तो आपको करके वेव की तरह का मरमर हाथ के नीचे फील होता है। तो आपने पहले मरमर कहाँ कहाँ पेल्पेट करना होता है, आपने एपेक्स पीठ के लेवल पे देखना होता है, और आपने एपिगैस्ट्रियम के ऊपर और स्टर्नम के ऊपर रख के हाथ को देखना होता है। एपिगैस्ट्रियम के अंदर भी उसका मरमर रेडिएट कर रहा होता है। उसके बाद जब आप उसकी ऑस्कल्टेशन करोगे, तो ऑस्कल्टेशन में ऑफ कोर्स सारी हार्ट साउंड सारे उसके एरियाज के अंदर, हार्ट के जो वाल्व के एरियाज होते हैं जिसमें आप एपेक्स बीट देखते हो, फिर उसको हल्का सा करवट दिलाकर भी देखते हो। और उसके बाद आप उसके सारे पल्मोनरी और एओर्टिक और वो सारे वाल्व्स के ऊपर रख के फिर S1 S2 देखते हो। और S1 S2 के लिए कई दफा हम यहाँ पर जुगलर आर्टरी के ऊपर इधर हाथ भी रखते हैं, ताकि हमें उसके साथ हम कोऑर्डिनेट कर सके, कैरोटिड के साथ, सॉरी, ताकि आपको अगर बीट और मरमर का पता चले। इवन इफ यू मिस द फाइंडिंग दैट इज ओके, इवन इफ यू मिस अ मरमर दैट्स ऑल राइट, बट एटलीस्ट आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। हमारा ये काम नहीं है कि हमें मरमर की भी आवाज है, हम कोई फाइंडिंग ना मिस कर दे। वी आर नॉट द कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इसीलिए है कि वो ये चीजें करे। बट एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल साउंड आई है इसके अंदर, राइट? You may not be able to tell exactly कि this is mid diastolic और this is pansystolic और ejection systolic, बता दो तो और भी अच्छा है, इवन गलत भी बता दो तो भी कोई नहीं, बट यू आर डेफिनेटली एबल टू पिक अप एन एबनॉर्मल साउंड। उसका मकसद यही होता है कि हमें एटलीस्ट ये पता हो कि इस पेशेंट में है सही कोई मसला। इस ये तो खैर नोन केस है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नोन केस नहीं है तो हम क्यों हर एक में एक पूरा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं?
या हम इवन कार्डिक का भी S1 S2 सुनते हैं या कुछ और, कि हमें पता हो कि अगर हमारे ऑप्स के अलावा अगर इस पेशेंट में कोई और सिस्टेमिक प्रॉब्लम है तो वेयर टू रेफर दिस पेशेंट, राइट। हमने अगर हार्ट साउंड सुनी एंड वी नो कि उस उन हार्ट साउंड्स में और हमें ये पता है कि उन हार्ट साउंड्स में कोई एक एडिड साउंड आई है, तो हमें पता हो कि हमने इसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजना है, या हम एग्जामिन कर रहे हैं और हमने देखा है कि उसका थायराइड इनलार्ज्ड है, तो हमें पता हो कि हमने इसको किधर भेजना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से आपने इस चीज को कम्प्लीटली, लेकिन ये तो है ही कार्डियक पेशेंट, इसमें तो आपकी बिल्कुल माफी नहीं है, उस तरह का एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं जैसे तस्मिया ने बोला है। आपने इसमें हर चीज का जेवीपी का जिक्र नहीं किया, डीमा का, पल्मोनरी एडीमा का जिक्र नहीं किया, तो हाउ कैन यू जस्ट आप इसमें से गुजर कैसे सकते हो बगैर ये सारा कुछ चेक किए। तो आपने एग्जामिनेशन में सारी बातें करनी है। और उसके अलावा ये है कि बट देन अगेन देखो, बार बार मैं बताती हूँ क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा कि आखिरी जो महीना आपका होगा मार्च का, रमजान तो होगा, मुश्किल भी होगी, आई डोंट नो, या अभी से कर लो, बाहर रमजान में एग्जाम में अपने घर में बैठ के, नहीं रमजान तो नहीं, अप्रैल होगा ना। हाँ, अप्रैल का जो महीना है ना वो तो अच्छा है। फिर अप्रैल के महीने में आपने सारा वक्त हॉस्पिटल में क्यों गुजारना है? सुनने में ऐसा लगता है कि हम याद कर लेंगे इस एग्जामिनेशन को तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम एमबीबीएस फाइनल ईयर में भी करते रहे हैं ये। सो हाँ, हमें पता है कि हमने इंस्पेक्शन कर लेनी है एक्सपोज करके चेस्ट को, हम पेट करने के लिए हाथ इधर उधर रखेंगे, हमें पता लग जाएगा। और फिर हम एपेक्स स्टेथ रख देंगे, क्योंकि हमने कौन सी कोई हार्ट साउंड की फाइंडिंग करेक्ट फाइंड करके तो बोलनी है। वी शुड नो हाउ टू परफॉर्म, बट वेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन अ पेशेंट इवन एग्जाम के अलावा भी, तो आपको समझ लग जाएगी कि आप इसी में ही बड़े कंफ्यूज होते हो कि आपने लिटाना कब है, पेशेंट को बिठाना कब है, और करवट कब दिलानी है, और कई दफा होता है कि आप पल्मोनरी वाल्व या ऑर्टिक वाल्व के ऊपर जब स्टेथ रखते हो तो आपने पेशेंट को थोड़ा सा बेंड करा के ब्रीथ भी कराना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद आपने ऑप्स का एग्जामिनेशन भी करना है। इधर आपने एपेक्स स्पीड चेक की, आपने करवट दिला दी, भी सुन लिया, क्या फिर आप पेशेंट को लिटा के ऑप्स का एग्जामिनेशन करोगे? तो ये सारा एक सीक्वेंस डेवलप करने के लिए यू हैव टू गो टू द वार्ड्स अगेन एंड अगेन, परफॉर्म इट ऑन द पेशेंट। क्योंकि एग्जाम के अंदर इट लुक्स वेरी वेरी ऑड कि आप कभी पेशेंट को बिठा रहे हो, कभी लिटा रहे हो, कभी चेस्ट एक्सपोज कर रहे हो, कभी एब्डोमेन एक्सपोज कर रहे हो, कभी ये। आपने ये सारा सीक्वेंस बहुत सिस्टमेटिकली खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप वहां पे अनऑर्गेनाइज लगोगे, या आप हैphazard काम करते लगोगे, या कभी होता है ना कोई बंदा ग्लव पहन रहा है, उतार रहा है, फिर ग्लव एक और लेके पहन रहा है, these things are very very irritating, not only in exam but in actual your practical work as well। कि ओपीडी में आप खड़े होके क्या हरकतें कर रहे हो कि एक प्रेग्नेंट पेशेंट, कार्डियक पेशेंट को कभी लिटा रहे हो, कभी बिठा रहे हो, कभी करवट दिला रहे हो, फिर बिठा रहे हो, फिर दिस इज नॉट अलाउड लाइक दिस। यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, या आपने खुद अपने सिस्टम और अपना स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करना है। कार्डियक एग्जामिनेशन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी में जितना कि एक ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन को दोगे। इसका टाइम मैनेजमेंट, इसकी ऑर्गेनाइज करके बोलना, क्योंकि कार्डियक डिजीज के अंदर आपका बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जो हो क्या उसे कहते हैं, कि आपने टाइम भी मैनेज करना है। इसके अंदर मोस्टली एक ही स्टेशन के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशंस और फिर मैनेजमेंट, बिकॉज मैंने आपको बताया कि कार्डियक डिजीज इज वन टॉपिक जो कि काफी हद तक 80% इट्स थ्योरेटिकल। तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो और आपने उस थ्योरी को सारा का सारा एग्जामिनर को दिखा के आना है कि मेरी ये थ्योरी है, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री। तो आपने वो सारा उसी तरीके से बोलना है, ठीक है। सो गुड, तस्मिया क्विकली अब इन्वेस्टिगेशंस बता दें। Madam, baseline investigations, including her blood group and complete blood picture, including hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count and platelet count, urine routine examination for any pus cells, protein and glucose, and viral serology, hepatitis B surface antigen and HCV, and her fasting blood sugar levels. Then, ma'am, her echocardiograph, including her ejection fraction, left
ejection fraction, and ma'am mitral valve area. And ma'am ECG and her dating scan, anomaly scan for any gross anomaly, and her recent obstetrical ultrasound, including fetal biometry, placental localization, and amount of liquor. And ma'am, her treatment sheet. ठीक है, किसी ने कुछ ऐड करना है? मैडम एको पे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इजेक्शन फ्रैक्शन, which lesion present, any other lesions, any valve problems, and ठीक है, valve area, और उसके अलावा मैम वो लेफ्ट एंड डायस्टोलिक डायलिटेशन, वेंट्रिकुलर डायलिटेशन जो 6 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, और ठीक है, उसके अलावा इंट्राम्यूरल थ्रोम्बाई, इंट्राम्यूरल थ्रोम्बाई। प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है। और इसके अलावा मैडम अगर ये कंजेनिटल इस पेशेंट को माइट्रल स्टीनोसिस है तो इसमें फीटल एको भी तो इम्पोर्टेंट है, वो नहीं मेंशन। हाँ, अगर कंजेनिटल है वो तो मैंने यही कहा कि हम हिस्ट्री पे ही रूल आउट कर लेंगे कि वेदर इट वाज कंजेनिटल, और बाद में उसको हुआ रिमेटिक हार्ट डिजीज से। ठीक है, सो फाइन। हाँ, अच्छा ठीक है, एको का इट्स ओके। देखो, अगर आपको इतनी डिटेल में एको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन देखो, कुछ चीजें हैं कार्डियक डिजीज में जिसमें मैं कहूंगी कि आप फेल नहीं होगे अगर देखो एको की इतनी डिटेल, जैसे मैं भी डॉक्टर साहब ने बताया, विच इज गुड। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पता तो कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है। हमारा काम नहीं है एको का पता करना, या हमारा काम नहीं है इतनी डिटेल में जाना, क्योंकि हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है जिसका काम है वही करेगा। हमने इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारी ना ये ट्रेनिंग है, ना हमारा थियोरेटिकली हमने ये चीजें पढ़ी हैं। एको की थोड़ी थोड़ी बेस लाइन चीजें आपको, माइट्रल वाल्व का एरिया थोड़ा सा पता हो, इजेक्शन फ्रैक्शन का पता हो, दैट्स ओके। बहुत डिटेल में अगर आपको पता है तो ठीक है, मुझे तो नहीं पता कि वेंट्रिकुलर एरिया कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और बेहतर वो ये है कि एग्जाम में वो बातें बोलो जो आपको पता है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं करनी जो आपकी फील्ड की है नहीं, क्योंकि फ्रैंकली एग्जामिनर को भी वो बातें उस तरह नहीं पता है, क्योंकि वो भी तो उस फील्ड के नहीं है ना। जो कार्डियोलॉजिस्ट का काम है वो उसका काम है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको एग्जामिनेशन पूरा करना आना चाहिए, आपको एब्नॉर्मल साउंड्स का पता होना चाहिए। इट इज नो डाउट बेटर इफ यू कैन कमेंट एग्जैक्टली कि इट्स डायस्टोलिक मर्मर और नॉट। लेकिन हमारी ट्रेनिंग नहीं है। जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो तो दिन रात सुन सुन के, जैसे हमने दिन रात गायनी को दे के हमें पता चल गया कि ये इतना एस्टिमेटेड बेबी वेट है, एब्रप्शन ऐसे पिक करनी है, वो करना है, इस तरह उन्होंने दिन रात देखे, उन्हें पता है कि मिड डायस्टोलिक मर्मर है या पैन सिस्टोलिक है क्या है। हमने अगर पूरी ट्रेनिंग में 6 मरीज कार्डियोलॉजी कार्डियक देख लिए तो उसमें हम कैसे बताएं कि कौन सा टाइप ऑफ मर्मर है। बट यस, पिकिंग अप द एबनॉर्मल साउंड इज इम्पोर्टेंट। वो हम पिक कर लेते होते हैं, बिकॉज हम हर एक में जनरल फिजिकल कर रहे हैं, एंड वी नो S1 S2। तो अगर S1 S2 के अलावा कोई एडेड साउंड है जो आपको लग रही है मरमर की तरह की या कुछ, तो यू कैन। इसी तरह एको तो करानी ही करानी है, लेकिन एको में आपको एक ज्यादा क्या जरूरी है, माइट्रल वाल्व का एरिया प्रोबेबली, और इजेक्शन फ्रैक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा भी अगर कुछ दो चार वो देख लो, बट बहुत ज्यादा आपको नहीं भी पता तो कुछ। हाउएवर यस, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी इन्वेस्टिगेशंस मिस नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर बेसलाइन के अलावा आपका एको है। और मैं तो ये कहूंगी कि एक बेसलाइन आपको सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इस पेशेंट के अंदर अगर वो नहीं ले रही ऑलरेडी लेसिक्स या कुछ ऐसा तो वो देना है। रूलिंग आउट प्लूरल इफ्यूजन या पल्मोनरी एडीमा एंड ऑल, ऑब्वियसली वो ज्यादा तो एक्सरे के ऊपर रूल आउट होते हैं। आपका एग्जामिनेशन विल टेल यू कि यू रियली नीड टू गेट एन एक्सरे डन विद शील्ड और नॉट। अगर आपको उसकी कोई चेस्ट एग्जामिनेशन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपको कुछ ऐसे ब्रीदिंग साउंड या कुछ आपको लंग्स की बेस पे कुछ ऐसा ऑस्कल्टेट हुआ है तो यू कैन आस्क फॉर इट, अदरवाइज योर कार्डियोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि उसको ये रूल आउट करना है या नहीं, कि प्लूरल एफ्यूजन या डीमा को रूल आउट करना है या नहीं। तो ये उसका काम है। तो और उसके अलावा और तस्मिया ने क्या मांगा था? मैडम ये स्पेसिफिक टू कार्डिक तो इको और ईसीजी, और मैम इसीलिए तो चेस्ट डेफिनेटली एक्सरे डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल फाइंडिंग। चेस्ट एक्सरे का नाम भी नहीं लेना। वो आप अगर आपको वाकई मिला उस पेशेंट के अंदर
चेस्ट ऑस्कल्टेशन पे कोई आपको पल्मनरी एडिमा या फ्यूजन की कोई सस्पिशन मिली है तो आप बोल दो, वरना लेट योर कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। मैडम चेस्ट और एग्जाम सॉरी मैम हाँ, मैम चेस्ट नहीं, एग्जामिनेशन में जब हमने बताना है तो हमने यही बताना है ना कि she has whether she has normal vesicular breathing or any added sound, and I will auscultate the lungs हाँ, for any हाँ, basal palpitations. यस, बस ठीक है। अब नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड है नहीं उसके लिए बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से क्योंकि देखो हमारा आप लोगों ने डरना नहीं है, बिकॉज हमने कार्डियक का नहीं किया हुआ ये सारा कुछ ना, और हमसे एक्सपेक्टेड भी नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन है और उससे रिलेटेड जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हार्ट को लेकर हो सकती हैं, वो चीजें आपने बोलते जाना है और मिस नहीं करना। और बाकी आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपके साथ होगा, वो डिसाइड करेगा। खामखा की इन्वेस्टिगेशंस आपने नहीं करानी, आपने बेसिक चीजें करा के उसके हवाले करना है कि ये एको है, ये ईसीजी, ये इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके अलावा जो जो से चाहिए, हो सकता है वो कोई आरएफटीज वगैरह भी कराना चाहे, कंसिडरिंग कोई स्पेसिफिक मेडिसिन जो वो दे रहा है क्या नहीं। अब हमें नहीं पता कि हमने डाइजॉक्सिन में आरएफटीज हम कराएं या ना कराएं, क्या पता डाइजॉक्सिन दे या ना दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो उसकी डिटेल बहुत ज्यादा में, इवन इफ यू नो तो दिस इज वेरी गुड, बट हाउ वुड यू नो, बट इफ यू डोंट नो तो इवन देन दिस इज ऑल राइट। ठीक है। अच्छा, उसके मैडम बाद जो अब आप pulses हम्म मैम जिस सीवीएस एग्जामिनेशन में पल्सेस हैं, जिस रेडियल ब्रेकियल कैरोटिड पल्स, मैम ये सारा फिर हमने एग्जामिनेशन नहीं, करने क्या करना है उसमें? वो हम क्या कर, जेवीपी देखनी है बस, जेवीपी जरूर मेजर करनी है। पल्सेस क्या क्या कर देख के, यस आपने रेडियल पल्स को तो कम्प्लीटली आपने कमेंट करना है उसके रेट पे, उसके रिदम पे, उसके वॉल्यूम पे। इट्स अ गुड वॉल्यूम, रेगुलर रिदम पल्स है, इतने पर मिनट है। हो सकता है वो इरेगुलरली इरेगुलर हो सकता है वो वीक फीबल हुई हो सकता है वो टेकिकार्डिया के साथ प्रेजेंट किया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है। रेडियल पल्स पे तो करना है, लेकिन उसके अलावा और पल्सेस पे नहीं कोई कमेंट करना। के मैम। ठीक है ना? सो अच्छा, गुड। चलो, और अब जो फीटल एको है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो एको पेशेंट की है वो, बिकॉज शी इज एट 32 वीक्स, कौन कौन से वाली मांगोगे इस पेशेंट में? मैम शी इज अ नोन लास्ट केस ऑफ एमएस। इसमें सिर्फ एक अभी तो नहीं एको, जिंदगी में एक पूरी प्रेगनेंसी में एक एको तो नहीं ना कराएंगे इसके। कई पेशेंट्स में मैम सीरियल एकोस की भी जरूरत होती है। मैम इस बुकिंग पे और हर ट्राइमेस्टर में एक एको। गुड, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज शी इज नोन केस ऑफ एमएस विच इज अनकरेक्टेड, ये हमने हिस्ट्री में रूल आउट नहीं किया था। एक्सक्यूज मी, अगर करेक्टेड होती तो शायद हम एक ही एको कराते, क्योंकि वो एक लो रिस्क केस हो जाता। ठीक है ना? इसके अंदर आपने सीरियल एकोस इसलिए करानी है क्योंकि माइट्रल वाल्व का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कहीं वो लेफ्ट हार्ट ब्लॉक की तरफ ना चली जाए। तो यस, बुकिंग पे, फिर हर ट्राइमेस्टर में, एंड देन एवरी ट्राइमेस्टर एको विल डिसाइड कि कितना फ्रीक्वेंटली और हमें इसकी एकोस करानी है। ठीक है, चलो, गुड। ओके तिस्मिया, सो हाउ विल यू मैनेज हर? Madam, management steps include management will depend on the investigations and counseling of the patient, that she is at 32 weeks. And इन्वेस्टिगेशंस क्या ma'am, क्या grading, चाहिए आपको? ma'am, investigation में injection fraction and mitral valve area. वेरी गुड। सो यस, इंजेक्शन फ्रैक्शन उसकी 60% है, और माइट्रल वाल्व एरिया भी उसका बेहतर ही दे देते हैं, मोर देन 1.2 है। Uh, Madam, then I will counsel my patient that she has a pregnancy of 32 weeks with a cardiac disease, which is a high risk pregnancy, and she will be managed by the multidisciplinary team, including the cardiologist, senior obstetrician, neonatologist, and anesthetist if needed. Then I will counsel her about the management of her presenting symptom, that is the shortness of breath, which will be classified according to the NEHA classification. And depending on the grading of according to the grading of NEHA classification, she will be admitted in the hospital for the acute episode of shortness of breath and management एक सेकेंड, in collaboration with the गुड, cardiologist. यू आर ओके। अच्छा देखो, अभी जो कार्डियक पेशेंट की मैनेजमेंट जब आपने शुरू करनी है ना, तो
इट विल लुक रियली गुड अगर आप इसको शुरू से ही बोलो, बिकॉज यू नो कि क्या कौन सी क्लासिफिकेशन पे ये लैंड करती है। आप ये क्यों कह रहे हो कि इट विल डिपेंड ऑन दैट? आप बोलो कि माय पेशेंट इज हियर विच इज क्लासिफाइड और ग्रेडेड एज ग्रेड 2 NYHA क्लासिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल, या ग्रेड 3 जिस पे आप करते हो। एक्सक्यूज मी, वो आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से रूल आउट कर लिया, हिस्ट्री में मैडम आपने वो उससे अभी पूछ लिया। क्लासीफाई, जी मैडम मैं वो इसलिए बोला कि मैम हमने अभी क्लासीफाई किया नहीं था ना, तो अगर एग्जाम में पेशेंट है तो आपने कर लिया, अगर नहीं है तो अपनी जिंदगी को आसान रख के खुद ही इजी क्लासिफिकेशन कर दो। ये मैं हमेशा अपने क्लास में बोलती हूँ। आपने कभी एग्जामिनर से नहीं पूछना कि मेरे पेशेंट क्या है अगर सीए का पेशेंट है और आप कह रहे हो कि इंट्रॉप फाइंडिंग एंड और जी अब कीमो डिपेंड करती है इंट्रॉप फाइंडिंग पे, आप और एग्जामिनर से पूछो कि जी क्या स्टेज बनी पेशेंट की, आप खुद ही से बोलते ऐसे, फिर तो एग्जामिनर तो आपको और फंसाएगा, वो कहेगा स्टेज 3C, चलो जी कीमो डिस्कस करते हैं बैठ के। आप बोलो कि स्टेज 1A 1 थी, मैंने तो सारा ट्यूमर निकाल दिया, घर चली गई, फॉलो अप से बुलाऊंगी बस, ठीक है मतलब पेशेंट ठीक करके मैंने भेज दिया घर। एक्सेप्ट कि एग्जामिनर खुद कहे कि नहीं बेटा लेट्स मेक द स्टेज दिस, राइट? वो नहीं बोलेंगे अगर आपका अच्छा जा रहा है मैम, एक्सेप्ट कि अच्छा भी जा रहा है और फिर आप ये सवाल करके खाम खा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लो। इसी तरह अगर हार्ट का पेशेंट बैठा है तो आपने हिस्ट्री में पूरा रूल आउट करना है कि सांस कैसे चढ़ा, बैठे बैठे चढ़ा, सीढ़ी चढ़ के चढ़ा, किचन में जाने तक चढ़ा, या चढ़ा ही नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सांस चढ़ने से मुराद क्या उसकी, तो वो आपने हिस्ट्री में रूल आउट कर लिया। एंड यू आर सेइंग दैट फॉर एग्जांपल दिस इज NYHA क्लासिफिकेशन 3 पे फॉर एग्जांपल कि शी शॉर्टेस्ट ऑफ ब्रेथ के साथ ही प्रेजेंट किया, तो वो ज्यादा है ही तो प्रेजेंट किया। तो मैं इस वक्त थोड़ा इसको फिर भी डिफिकल्ट बना रही हूँ, कार्डियक डिजीज में 3 और 4 थोड़ा डिफिकल्ट में आ जाते हैं, 2 और 1 इजी होते हैं ऑफ कोर्स। चलो फॉर एग्जांपल बिकॉज पेशेंट ने प्रेजेंट ही कॉम्प्रोमाइज्ड तरीके से किया है कि स्टेज 3 वाला प्रेजेंट कर दिया, तो तो आप अगर अपनी हिस्ट्री स्टार्ट, अपनी मैनेजमेंट स्टार्ट करो कि माय पेशेंट इज grade 3 NYHA classification patient of a heart disease and she has got associated risk factors more than 2, जो मैंने आपको बोले थे कि इसका MS है अनकरेक्टेड, कार्डियक डिसफंक्शन है, इसका लेफ्ट हार्ट ब्लॉक वाला आ रहा है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ विद MS का मतलब ही ये है कि पल्मोनरी एडीमा और लेफ्ट हार्ट ब्लॉक की तरफ पेशेंट जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप अगर आप बिफोर काउंसलिंग, बिफोर एनीथिंग एल्स, हार्ट डिजीज के पेशेंट की 2-3 चीजें क्लासिफाई करके एग्जामिनर के सामने रखोगे, एक आपका माइंड भी उस हिसाब से ज्यादा अच्छा चलेगा, आपका एग्जामिनर तो वहीं आपको पास कर चुका होगा कि इसने हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता दिया है कि ये तो इस लेवल की डिजीज है, विच विल शो कि ये तो इतना हाई रिस्क पेशेंट है, शी इज अ केस ऑफ MS, शी हैज गॉट more than 2 morbidity factors associated with her, शी इज हेयर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद MS, विच मीन्स दैट ये ग्रेड 3 के लेवल की तो एटलीस्ट है। और जब आपने ये बोल दिया उसके बाद जब आप काउंसलिंग शुरू करोगे तो आप सबसे पहले कैंडिडेट अपने क्या उसे कहते हैं अटेंडेंट्स को यही बताओगे कि ये तो बहुत हाई रिस्क केस है, शी विल बी इमीडिएटली शिफ्टेड टू CCU, क्योंकि ये तो ग्रेड 3 एंड अबव है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिस्क फैक्टर्स। अगर मैं इसको अपने पास रखूंगी तो इसकी तो मॉर्बिडिटी इतनी बड़ी है कि इसके तो रिस्क फैक्टर्स मैंने बता दिए, मैंने आपको 5 रिस्क फैक्टर्स बताए थे कि अगर 2 या उससे ज्यादा होंगे तो more than 70% चांस शी एंड अप इन कॉम्प्लिकेशन, तो उसको आप सीरियसली लोगे, राइट? तो इसके अंदर तो वो सारा कुछ आ रहा है, तो आप अपने अटेंडेंट्स को और पेशेंट को यही फौरन बताओगे कि ये हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी है, इसके ये रिस्क फैक्टर्स है, और ये कोई आम पेशेंट नहीं है, इसको तो फौरन कार्डियोलॉजी के अंडर केयर होना चाहिए, शी शुड बी शिफ्टेड टू CCU इमीडिएटली, राइट? उसके बाद आप बैठ के उसकी काउंसलिंग करोगे रिलेटेड टू द रिस्क फैक्टर्स टू द मदर एंड टू द फीटस, और फिर आगे प्रेगनेंसी को कैसे लेके जाओगे। और इसी तरह आपने एग्जाम में अपने जो है एग्जामिनर को भी बताना है हार्ट डिजीज के पेशेंट में कि पहले 2-3 लाइनों में ही उसको कैटेगराइज करना है कि ये किस लेवल पे। देखो हम लोगों को एक, मैं बार बार बताती होती हूँ कि कार्डियक डिजीज से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट आपको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हार्ट की है, आपको पैथोलॉजी के नाम आने चाहिए, उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए विद डायग्राम कि दिस इज द राइट हार्ट फेलियर साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हार्ट फेलियर साइड। अगर वेल्स का डिजीज आ रही है तो वो कौन सी साइड की है और उससे पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस किधर को जा रही है, जाहिर बात है अगर वो लेफ्ट साइड की है तो वो लंग्स में ज्यादा
अगर वो लेफ्ट हार्ट में आके ब्लड जाएगा ही नहीं और लंग्स की तरफ जाता जाएगा तो वो लंग्स में फ्लूइड ओवरलोड करके पल्मोनरी एडीमा और वो करेगा। अगर राइट हार्ट फेलियर है तो वो लंग्स में जाने से पहले बॉडी बॉडी से ही आगे, हार्ट से आगे ही नहीं जा रहा, हार्ट से पीछे बॉडी की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो वो हार्ट फेलियर की तरफ ज्यादा जा रहा है केस। और इसी तरह अगर कोई रीगर्ज का केस है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा रिदमियाज या उसके चांसेस कितने ज्यादा हो जाएंगे। इस आपको एक जनरल व्हाट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट्स, व्हाट इज ईसन मीगर सिंड्रोम, किस किस केस में आपको डायरेक्ट टर्मिनेशन बता देनी है, मॉर्फन्स में, पल्मनरी हाइपरटेंशन में आपको वो चीजें कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में। और जिसमें डायरेक्ट टर्मिनेशन नहीं है तो उसमें आपने मॉर्बिडिटी के लेवल को रूल आउट करना है। इंस्टेड आप इस चीज पे टाइम वेस्ट ना करने बैठ जाओ कि मुझे डाइजॉक्सिन का एक्शन पढ़ना है, मुझे ये देखना है कि एस इनहिबिटर्स या ओके फाइन, यस, अ लिटिल बिट ऑफ मेडिसिन यू शुड नो, केटेनोलॉल इज हार्ट स्पेसिफिक, ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, या थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए मेडिसिन का भी। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो इट्स टोटली फाइन फॉर द टॉक्स एंड दिस प्रैक्टिकल एग्जाम। लेकिन आपको पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑल द डिजीजेस रिलेटेड टू द हार्ट पता होनी चाहिए। उस पैथोफिजियोलॉजी को लेकर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस किस ट्रैक के थ्रू कहाँ कहाँ हो सकती हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको अपने पेशेंट को फौरन से हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन पे फौरन से कैटेगराइज करना पता होना चाहिए कि हाउ आर यू गोइंग टू कैटेगराइज, ये कौन सी कैटेगरी का पेशेंट है। या आपने वहां खड़े खड़े ही अपने वार्ड में करना होता है या आपने फॉरेन एग्जाम में करना होता है। और आपकी मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट counseling in this case, it's not about anything, it's about categorizing the patient and taking the patient to the right department and then treating her। अगर आप उसमें ही डिले करके कहानियों में, बिकॉज इट्स नॉट अ केस ऑफ एनीमिया, इट्स नॉट अ केस ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, और इट्स नॉट अ केस ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी जिसको आप आराम आराम से डील करोगे। ये तो आपको सबसे पहले खुद पता होना चाहिए कि पेशेंट की कैटेगरी क्या है, क्योंकि इसमें वेरी हाई मोर्टेलिटी होती है। जिसमें मैंने आपसे कहा कि आप एकदम से आपने टर्मिनेशन एडवाइस करनी है, उसमें तो बहुत ही हाई मोर्टेलिटी है। इस तरह के पेशेंट्स में जो कि कॉम्प्लिकेशंस में एंड अप हो रही है दिस हार्ट डिजीज एंड प्रेगनेंसी में, आपने आप यू कैन, जहां मोर्टेलिटी वाला आ रहा है पेशेंट, वहां तो सबसे पहले आपने उसको इमीडिएट केयर प्रोवाइड करनी है, राइट। सो एग्जैक्टली इसी तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सो फाइन। सो इस तरह से आपने पहले एग्जामिनर को भी बताना है और फिर अपने उसको भी लेकर चलना है, ठीक है। सॉरी, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो 1 मिनट। सो गुड। अच्छा, सो आई थिंक तस्मिया का तो राउंड स्टार्ट हो गया। सो इस तरीके से करना है। सो कोई और अनीला का है, अनीला मैनेजमेंट बोल दे इस पेशेंट की। Mm. Okay, जी। madam, I will going to counsel my patient that she is having a high risk pregnancy. I will going to admit her in the CCU under the continuous supervision of the cardiologist, and I will going to counsel regarding the fetal-maternal complication that she is at the risk of the heart failure, and the baby will at the risk of the preterm delivery, IUD, and
So first of all, in liaison with the cardiologist, I will going to start her with the anticoagulation and other medication like the beta blockers and the diuretics. Initially, I will going to stabilize my patient. My aim of the treatment is to optimize her current condition and to prevent her from the long-term complication. And once her condition is stabilized, then I will going to discharge her. But our aim is to continue the pregnancy till term, and the mode of the delivery will be individualized depending upon her severity and the control of the disease. Because if her symptoms are not settled, we have to go for the balloon valvotomy. If there is a left atrial enlargement of more than 60 ml per meter square, and if her disease is severe, depending upon her further on echo, we will going to decide her for the surgery in the zone with the cardiologist. And at 36 weeks of the gestation, in liaison with the multidisciplinary team, anesthetist, neonatologist, and the cardiologist, I will going to decide regarding the mode and the timing of the delivery. We're going to discuss regarding the contraception and the breastfeeding also. And if my patient does not goes into the labor, and I will going to plan her delivery at 37 to 38 week of the gestation, and it will be done in a consultant-led unit. And we're going to stop her if the anticoagulation has started. It will be started at a therapeutic dose. We're going to stop 24 hours before, and we're going to monitor my patient continuously. The cardiac monitoring will be done. The continuous electronic fetal monitoring will be done, and we'll look for the signs and symptoms of the heart failure, as my patient has uncorrected mitral stenosis, so she is at the risk of the heart failure. So we'll look for the signs and symptoms like the orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, the vitals monitoring. Strict input output record monitoring will be done. I will going to shorten the second stage of the labor, and will hand over my baby to the once my patient enters into the labor. I will going to एक shorten मिनट the है जो second. ओके Yes, ma'am. फाइन। मैं इसलिए साथ साथ करना चाह रही हूँ। अच्छा, यू आर ऑल्सो गुड, तस्मिया की भी अच्छी थी स्पीच और सारा कुछ, आपका भी अच्छा है, लेकिन वही बात है कि ठीक नहीं है कार्डियक पेशेंट इस तरह नहीं। देखो बात ये कि आप लोगों ने थ्योरी की भी है, आपने भी और तस्मिया ने भी, आपने इस चीज को ना प्रैक्टिकल अप्लाई करके कुछ ज्यादा ही थ्योरी दिखानी है एग्जामिनर को। यू हैव टू सेट आउट एवरीथिंग। आपने करना क्या है? जैसे मैंने बोला ठीक है इनिशियली आपने, लेकिन आपने एकदम से हाई रिस्क नहीं बोल देना, आपने रीजन बोलना है कि व्हाई इज इट हाई, व्हाई इज शी हाई रिस्क। आपने बताना है कि बिकॉज शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है, न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से ग्रेड इतना है, और इसके अंदर ये मॉर्बिडिटी फैक्टर्स अटैच्ड है, तो मैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करूंगी, और ये काउंसलिंग करके शिफ्ट किया मैंने सीसीयू में पेशेंट। उसके बाद आप बहुत तेजी से आगे चल रहे हो, इस तरह नहीं करना। आप अब एग्जामिनर देखो, जब आप वाइवे में बैठे हुए हो ना, और फ्रेंकली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो, व्हाट मैटर्स इज कि पेशेंट कहाँ पे मैनेज हो रहा है। क्या वो आईसीयू सीसीयू में हो रहा है मैनेज, या वो लेबर रूम में हो रहा है, या वो घर भेजा जा रहा है, या वो ओपीडी में मैनेज हो रहा है। और वहां पे क्यों हो रहा है वो आपने बता दिया, बिकॉज हाई रिस्क है इसलिए सीसीयू में हुआ। वो कितने दिन तक वहां रहा, घर गया या नहीं गया, या वो वार्ड में शिफ्ट कब हुआ, वार्ड मतलब उसकी व्हाट एग्जामिनर वांट्स टू नो इज कि यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सन, क्या आपको ये पता है कि आपने पेशेंट को कब सीसीयू में शिफ्ट करना है और कब वापस शिफ्ट करना है, या घर कब भेजना है। अगर घर भेजना है तो हाउ फ्रीक्वेंटली आर गोइंग टू कॉल हर बैक, और अगर आप उसे वापस बुला रहे हो तो हर विजिट पे आप उसको क्या देख रहे हो। नो वन इज इंटरेस्टेड एट दिस पॉइंट कि आप 36 वीक्स पे कॉन्ट्रासेप्शन डिस्कस कर रहे हो। पिछली सारी चीजें मिस करके अगर आप 36 वीक्स पे कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे हो ना, तो आप वहीं फेल हो चुके हो। सो दिस इज नॉट द वे हाउ यू डील विद द कार्डियक पेशेंट इन एग्जाम। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में तो खैर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो आपने फैसला करना ही है ना कि अब आईसीयू से कब निकलना है पेशेंट ने और कब नहीं निकलना, और अगर निकलना है तो फिर कहाँ आना है क्या नहीं आना। लेकिन एक तो एग्जाम में टाइम कम है, शायद अब इतना कम टाइम वाले स्टेशन होते हैं सिर्फ 10-10 मिनट के, कि एग्जामिनर भी शायद आपको ना कह सके कि बेटा आपने कब वापस निकाला, व्हेन वाज द पेशेंट ब्रॉट बैक फ्रॉम द सीसीयू, और यू हैव केप्ट हर टिल 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और फिर आप कार्डियक पेशेंट के अंदर भी नहीं, वैसे भी इट्स वेरी इरिटेटिंग टू हियर 37 to 38 वीक्स।
वी नेवर टॉक लाइक दिस विद द पेशेंट। हम तो पेशेंट को कहते हैं 15 जुलाई को आना डिलीवरी के लिए, यू नो, या हम क्या इंडक्शन के लिए, या हम पेशेंट को सिजेरियन की डेट देते हैं। चलो अगर यहाँ पर आप वैसे एग्जामिनर से बात कर रहे हो या एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन एक दूसरे से बात कर रहे हो, यू वांट टू टॉक इन टर्म्स ऑफ वीक्स, तो टेल द एग्जैक्ट टाइम ना। आप एक हाई रिस्क कार्डियक पेशेंट को इतना कैजुअल ले रहे हो कि आप कह रहे हो कि 37 to 38 वीक्स एनी टाइम। इट्स नेवर लाइक दैट, यू हैव टू बी वेरी श्योर। आपकी एक एक चीज से आपकी कैजुअल होना और वो चीज पता लगेगी। दिस इज अ वेरी, ये हमें पता है कि इसके साथ अगर थोड़ी सी भी मोर्टेलिटी अटैच्ड है तो हमने इसके ऊपर कितना क्लैरिटी से चलना है, और पेशेंट को उसके अटेंडेंट्स को और हमें भी क्लैरिटी हो कि हमने इसको कब और कहाँ लेके जाना है, राइट? So if patient is in CCU, you have explained to the examiner कि why is she in CCU, because ये इतने ग्रेड की डिजीज है, इसके साथ ये को बोले वो सारी बातें कि इसके साथ ये कोमॉर्बिडिटीज अटैच थी और ये है, और मैंने इसको CCU। ठीक है, CCU में अब क्या किया, इट इज गुड इफ यू नो एग्जैक्टली विद द कार्डियोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिव केयर पर्सन एंड एनेस्थेटिस्ट, इवन द न्यूरोटोलॉजिस्ट, ये सब लोग उस मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का पार्ट होंगे। उसके साथ आपने मिलके ये डिसाइड किया कि आपने इसको जो भी फ्लूइड मैनेजमेंट करनी है, आपने उसको लेसिक्स दिया या हार्ट सपोर्ट दिया या जो भी। चलो 4 दिन में या हफ्ते में शी इज स्टेबल नाउ, राइट? इफ शी इज स्टेबल नाउ विद मेडिसिन, आर यू गोइंग टू कीप हर इन द CCU or you're going to shift her to the room or to the ward? Okay, she's shifted to the ward. Ward में आपने कुछ दिन monitor किया, she's set on the medicines, and now she looks stable, but she has been labeled a high grade, grade 3 or 4 disease, or she'll remain like this now. She can be discharged home because she's at 34 weeks और अभी तो टाइम है डिलीवरी को। लेकिन क्या 34 वीक्स में हम जब उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो किस एडवाइस से डिस्चार्ज कर रहे हैं? शी इज गोइंग टू कम बैक टू यू। यू डिड नॉट मेंशन एनीथिंग लाइक दैट। सो 34 वीक्स पे जा रहा है, आपने वीकली उसको, यू आर गोइंग टू कॉल हर बैक आफ्टर 1 वीक, और उसको आप उसको मॉनिटर करोगे उसके अकॉर्डिंगली, स्पेशली फॉर द सिम्टम्स, राइट फ्रॉम द सिम्टम्स। आप पूरी हिस्ट्री उसी तरीके से फिर से करोगे, स्पेसिफिक तरीके हिस्ट्री बोलोगे कि उसके सिम्टम्स में तो कुछ नहीं है उसका, वो सारा रूल आउट करके उसके बाद एग्जामिनेशन में वेट गेन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडीमा इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेसिव वेट गेन। सो राइट फ्रॉम द BMI आप उसका पूरा एग्जामिनेशन दोबारा से, एडिड साउंड, वो सारा एको या जो भी आपको लगता है आपको रिपीट करना है, वो करके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ लेजॉन रख के, और फिर आप उसको फॉलो करोगे एंटिल व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू टेक हर टू, या आप कहाँ तक लेके जाओगे, इसका फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी क्लैरिटी चाहिए। आप आपका अगर पेशेंट स्टेबल चल रहा है तो प्री टर्म भी नहीं कर सकते, लेकिन टर्म तक ले जाते ऐसा ना वो अनस्टेबल हो जाए। अगर वो घर से आएगी तो आप उसको क्या एट द डे ऑफ डिलीवरी एडमिट करोगे या उसको पहले ही एडमिट कर लोगे? इसके मैं खुद ही बता देती हूँ। इस तरह का जो पेशेंट है, जो कि कार्डियक पेशेंट है, हु इज ऑल राइट विद मेडिसिन, राइट, शी इज ओके एंड हर सिम्टम्स आर सेटल्ड ओनली बिकॉज शी इज ऑन मेडिसिन, एंड शी इज कमिंग फॉर फॉलो अप, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एवरी वीक और मे बी ट्वाइस अ वीक और सो। और वो भी इसलिए हमने भेजा है क्योंकि वो कंप्लाइंट थी पेशेंट, और वो अवेयर थी, एंड शी न्यू हाउ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। अगर कोई ऐसी इग्नोरेंट खातून है या कोई ऐसा है जो डजंट हैव very good support at home, या जिसको फॉरेन आने में भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन कीप हर इन द हॉस्पिटल ऑल्सो। बट अगेन कीपिंग पेशेंट इन द हॉस्पिटल अननेसेसरीली इज मोर डेंजरस, क्योंकि आजकल जिस तरह की इन्फेक्शन और वो है, तो ऊपर से वो भी हो गई तो फिर वो किधर जाएगी? तो पहले ही हम कह चुके हैं कि उसको एनीमिया, हाइपरटेंशन और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम पहले हम वो करा के उसे बिठा दें, तो इसलिए अननेसेसरीली भी नहीं हॉस्पिटल में रखना। सो इफ शी इज कमिंग बैक ऑन फॉलो अप्स, तो इस पेशेंट के अंदर हु इज ऑल राइट विद मेडिसिन, तो आपने इसकी जो डिलीवरी हो जानी चाहिए वो 38 वीक्स पे हो जानी चाहिए। शी कैन नॉट गो बियॉन्ड 38 वीक्स, राइट? 38 वीक्स का मतलब है 37 कंप्लीटेड वीक्स, राइट? 38 वीक्स पे। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हर ऑन द डे ऑफ डिलीवरी या ऑन द डे ऑफ इंडक्शन, मैं उसे एक हफ्ता पहले बुला के एडमिट कर लूंगी। आई विल टेल हर टू कम एट 37 वीक्स। वाई? इसलिए क्योंकि क्या पता मैं उसको इंडक्शन के दिन बुलाऊं और वो अनस्टेबल कंडीशन में आ जाए मेरे पास, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ जाए या वो कोई नया मसला बनाकर आ जाए। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ शी कम्स ऑन द डे ऑफ इंडक्शन विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और विद एनी अदर थिंग जो कि उसको अनस्टेबल शो करेगी, तो क्या पता 2 हफ्ते मुझे उसको स्टेबल करने में लग जाए, और फिर क्या मैं 40+ पे ले जाऊंगी उसको और मजीद अनस्टेबल।
सो इंस्टेड 37 वीक्स पे स्टेबल कंडीशन पे आई कीप हर इन द हॉस्पिटल, उसकी मॉनिटरिंग, मेडिसिन, हर चीज को खुद देख के, सो दैट एट 38 वीक्स शी शुड बी रेडी फॉर द डिलीवरी। और फिर प्लान्ड इंडक्शन, अगर अगर इफ देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन बिकॉज फॉर सिजेरियन सेक्शन, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉर्मल डिलीवरी इज अ गुड मोड ऑफ डिलीवरी फॉर द पेशेंट। सो मोड ऑफ डिलीवरी में आप कार्डियोलॉजिस्ट से तो इतना डिस्कस मोड ऑफ डिलीवरी नहीं करोगे, लेकिन ड्यूरिंग लेबर और वो सारा कुछ आप जरूर उसके साथ लेजॉन में रखोगे। सो आपने उसका इंडक्शन अगर स्टार्ट किया और उसके बाद सारा लेबर के अंदर फिर इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी लेबर, इसके अंदर आपने हर चीज को मेंशन करना है, फ्लूइड बैलेंस को, एनाल्जेसिया को, आपने आई डोंट नो शायद चीजें मेंशन की होंगी, बट ये है कि उसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूस, ईसीजी उसको लगी होगी, कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होगा, उसकी मेडिसिन, इसके अंदर पेन रिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद आप उसको और फिर जो सेकंड स्टेज है और फिर थर्ड स्टेज, यू हैव टू मेंशन स्टेज 1 2 3 की अलग अलग मैनेजमेंट इस पेशेंट के अंदर, सिंटोसिनॉन का क्या करना है, पीपीएच का क्या करना है, वो सारा कुछ। और फिर जाके बेबी हैंडओवर की बात आती है। और यस, अगर बीच में मीनवाइल विजिट्स में 36 वीक्स पे आप कॉन्ट्रासेप्शन उस वक्त भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पीपीआईयूसीडी का भी आप देख लोगे इस वजह से, और वरना बाद में सेफ कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर डिस्कस करना। वेलवॉटमी को बहुत डिटेल में बोलना वॉज ओके, बट कर भी सकते हैं बिकॉज पेशेंट इस स्टेज पे पहुंच गई वेल्व की वजह से, और वेलवॉटमी बिल्कुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बड़ी सक्सेसफुल होती है, वो कर सकते हैं डिस्कस, या बाद में वेलवॉटमी के लिए भी आप रेफर कर सकते हो। सो वो सारा कुछ आप देख सकते हो। और लेकिन ये है कि इसके अंदर अब फिर एक और भी केस हम कर लेते हैं जल्दी से, अनीला, ठीक है? अब इसको अगर आप क्विकली बोल दो 2 मिनट्स में तो बड़ा अच्छा हो जाए। मैडम मैं बोलूं? क्योंकि आई थिंक स्पीच भी अच्छी है। हाँ चलो इकरा बोल दे, अगर मैडम अनीला चलो अलाउ करती है जी, इकरा बोल दो। I will counsel the patient about the diagnosis that she is having at 32 weeks, gestational amenorrhea of 32 weeks with uncorrected mitral stenosis with more than 2 risk factors, as well as New York Heart Association classification grade 2 or 3 or 4. So I will admit her in CCU, involve the multidisciplinary team, meanwhile stabilizing the patient as my patient is having shortness of breath. So I will give her oxygen, top up diuretic, diamorphine, beta blockers, and involve the cardiologist. In liaison with cardiologist, I will change her medication, review and change her medication, continue thromboprophylaxis. My aim is to optimize her current condition and prevent complication, as well as I will counsel patient and attendant about risk factors, about complication related to mother or fetus, including mortality, exacerbation of situation, preterm labor, fetal growth restriction. I will give her steroid cover as my patient is at risk of preterm delivery. As my patient is stable, when my patient is stable, I will shifted her to CCU, from CCU to general ward, and keep her admitted for at least 1 week under observation and monitoring her vitals as well as her fetal condition. Then if patient remains stable, then I will discharge her with advice of follow up, medication and compliance, as well as I will give her awareness about red flag signs and tell her that uh, try to avoid stress, infection, as this can exacerbate the situation. Her follow-up visit will be at 1 to 2 weekly interval. At each visit, I will reassess her by taking her history and doing her examination, including her BMI, her edema status, as well as her cardiac and status. Then I will, uh, as well as I will do her growth scans at a 2 to 3 weekly interval. At 36 weeks, I will at 36 weeks, I will discuss her mode of delivery, time of delivery, breastfeeding, contraception, and change her. If she is taking warfarin, I will change her warfarin to low molecular weight heparin, as this is a rule to change warfarin to low molecular weight heparin 2 weeks before delivery. At 37 week, I will admit her and
plan, I will do her bishop. As my patient is primary gravida, I will do clinical pelvimetry to rule out CPD. My aim is to, if there is no element of CPD and there is cephalic presentation, my aim is to deliver vaginally. Then before planned induction of labor, I will stop low molecular weight heparin and change her to unfractionated heparin. And 4 hours before induction, I will stop her unfractionated heparin, do her induction during labor. During first stage of labor, I will during first stage of labor, I will keep her prop up, give oxygen, good analgesia, good hydration, but limit her fluid intake up to 80 ml per kg per hour. Avoid supine lithotomy position. During second stage, I will shorten the second stage by applying instrumental vaginal delivery. At active management of third stage of labor, वेरी गुड. active management of third stage of labor by giving concentrated synthoinfusion as well as giving misoprostol, but avoiding ergometrine as well as carboprost. After delivery, I will give her thromboprophylaxis up to 6 weeks and advise her contraception, encouraging breastfeeding. In contraception, I will give her, I will advise her to use barrier methods as well as progestogen implants, Mirena. ठीक है. गुड. ये बहुत अच्छा आपने बोला सारा. और आई वुड से कि इस तरह का जो बहुत अच्छी, देखो मैं तो यही कहूंगी कि चाहे रट्टा मारे या जो भी करे, हर टॉपिक की जो मैनेजमेंट है ना, एक्चुअली मैनेजमेंट क्या, हिस्ट्री एग्जाम में अपने हर क्लास में कहती हूँ, जब तक आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होंगी ना, आप वहां नहीं प्रेजेंट कर सकते. वहां एग्जाम का जो ऑरा होता है, नॉट ओनली फॉर एग्जाम, इट्स फॉर द होल लाइफ. आप पेशेंट को डील कर रहे होते हो, इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, एकदम से कार्डियक पेशेंट है, जब तक आपके फिंगर टिप्स पे एक एक चीज नहीं होगी, एक एक चीज रिगार्डिंग स्टेज, और ये हमने अपनी फील्ड में रह के करना है. बहुत कार्डियोलॉजी की बातें करके हमें कुछ नहीं हासिल होना, ना एग्जाम में ओवर एप्रिसिएशन, ना एग्जाम में पास फेल का मसला. लेकिन जो आपकी अपनी फील्ड की चीजें है ना, उसमें यू कैन नॉट मिस अ सिंगल थिंग. यू कैन नॉट मिस सिंगल थिंग, लाइक स्टेज 2 को शॉर्टन करना, स्टेज 3 में एक्टिव में, हाउ कैन यू जस्ट स्किप थिंग्स एंड कंटिन्यू. सो आप इस तरह नहीं कर सकते हो. आपने इस तरह, अच्छा, इकरा ने बहुत ज्यादा बीच में बोला अबाउट द एंटी कोएगुलेंट्स एंड ऑल. अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा नहीं मारना. इफ अ पेशेंट इज अ केस ऑफ अ मैकेनिकल हार्ट वाल्व, तो ठीक है, या वो किसी पहले एंटीकोएगुलेंट पे है तो ठीक है, वरना जो हर कार्डियक पेशेंट को तो हम नहीं ना हेपरिन या उस पे करते. बट यस, अगर मैकेनिकल हार्ट है फिर तो बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है. पेशेंट इज ऑन वारफरिन. वारफरिन कब बंद करनी है, कब शुरू करनी है. 36 वीक्स में फॉर एग्जाम्पल बंद किया, एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर डिलीवरी आपने बंद करनी है. उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे करना है. अगर वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की थेरापीटिक डोज पे है, तो आपने बिफोर डिलीवरी या बिफोर सिजेरियन कितने आवर्स पहले, अगर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है तो उसे आप 12 आवर्स, आप उसे 24 आवर्स बिफोर सिजेरियन सेक्शन बंद करते हो. और अगर वो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन पे है तो वो आप उसे 4 से 6 घंटे पहले भी बंद कर सकते हो, 6 घंटे पहले. उसके अलावा ये कि जब हो गई डिलीवरी या सिजेरियन, तो उसके बाद कब शुरू करना है, फिर वारफरिन पे दोबारा शिफ्ट कब करना है. वारफरिन के साथ आप आईएनआर को लेके चल रहे होते हो, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के साथ आप एंटी 10A फैक्टर को लेके चल रहे होते हो, एक्टिवेटेड 10 फैक्टर को लेके चल रहे होते हो. तो ये फिर चीजें, अगर तो आपने एंटी कोएगुलेशन को डिस्कस करना है, तो वो तो फिर मैकेनिकल हार्ट वाल्व के अंदर, और फिर उसके बाद एपिड्यूरल अगर देना है तो फिर आपने 4 घंटे पहले बंद करना है. एपिड्यूरल का कैथेटर निकालना है तो कितने घंटे बाद निकालना है, उसके लिए आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए, उस वो तो फिर एक लंबी डिस्कशन और है. सो एवरी एमएस और एवरी पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज इज नॉट ऑन एंटीकोएगुलेंट्स. सो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार के तो ये बातें नहीं करनी. एंड एवरी पेशेंट इज नॉट ऑन वारफरिन ऑल्सो. सो ये आपने सिर्फ उन 3 केसेस, फिर ये है कि जो ये ले रहा है, तो वो तो फिर मैकेनिकल हार्ट के अंदर एंडोकार्डाइटिस की भी बात होनी चाहिए, कि आपने उसकी ट्रीटमेंट, ये जो है थेराप्यूटिक, ये जो ये एंटीबायोटिक्स जो देते हैं, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन या टाइकोप्लेनिन जो है, ये फिर आप इसकी एंडोकार्डाइटिस की भी बात करोगे, प्रोफाइलेक्सिस की. तो वो तो फिर एक अलग ही टॉपिक है ना, वो तो केस ही और है. तो आपने खुद नहीं कुल्हाड़ा मारना, लेकिन द रेस्ट वाज एक्सीलेंट. और मैं यही कह रही होती हूँ कि वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग इन एग्जाम,
जब मैनेजमेंट का सेगमेंट हो तो मैनेजमेंट के सेगमेंट में आपको सबसे पहले उसकी काउंसलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट 2 बातें कि उसको है क्या, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, और आर यू गोइंग टू एडमिट हर और नॉट, इफ यू आर गोइंग टू एडमिट हर, वेयर आर यू गोइंग टू एडमिट हर, इन द सीसी और इन द वार्ड, एंड टिल व्हाट टाइम शी विल नीड टू बी एडमिटेड। क्योंकि यही तो काउंसलिंग है जो कैंडिडेट, जो उसके अटेंडेंट सुनना चाहते हैं कि वो और एडमिट हो रही है तो क्यों हो रही है, ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से। उसके बाद आपने उसका जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट है, या कह लो पहले एम ही अगर बोलना है, तो फिर उसके अंदर फिर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स लाइक एनीमिया, यूटीआई एक्सेट्रा, वो ठीक करोगे। और फिर आप उसकी मॉनिटरिंग मदर की और फीटस की और टिल टर्म कैसे लेके जाओगे। और जब आप इस इन्हीं पॉइंट्स को और एलैबोरेट करोगे, तो आपने उसके रिस्क फैक्टर्स को एलैबोरेट करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कौन कौन सी इन्वॉल्व करनी है, एनीमिया को कैसे ठीक करना है, इन्फेक्शन को कैसे ठीक करना है, टर्म तक कैसे लेके जाना है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, घर रखना है नहीं रखना। जैसे इकरा ने जब कहा कि 37 वीक्स में एडमिट करूंगी तो आई डू हर बिशप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिशप के साथ साथ आप उसकी हिस्ट्री की, उसकी सिम्टोमेटिक इवेलुएशन भी दोबारा से करोगे कि कहीं वो अनस्टेबल तो नहीं हो गई। और इस सारी आज की डिस्कशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात लर्न की है, जो मैं एक आपको थोड़ा सा बता दूं दोबारा से, कि इफ अ कार्डियक पेशेंट प्रेजेंट्स इन एन अनस्टेबल कंडीशन, चाहे वो किसी भी जेस्टेशन पे हो, हमने डिलीवरी प्लान नहीं करनी। डिलीवरी की इंडिकेशन ग्रेड 3 ग्रेड 4 डिजीज नहीं है। एक्सक्यूज मी, जैसे 32 वीक्स पे या 34 वीक्स पे पेशेंट अनस्टेबल आई है, हमें कार्डियोलॉजिस्ट भी कह रहा होता है, हमें मेडिसिन वाले भी कह रहे होते हैं कि बेबी निकालेंगे तो ठीक हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। एक्सक्यूज मी, उसकी ये कंडीशन बेबी की वजह से नहीं है, उल्टा अगर हम उसके ऊपर डिलीवरी का स्ट्रेस डालेंगे तो उसकी और हार्ट की कंडीशन खराब हो जाएगी। ठीक है, सो इस वजह से हमने पहले पेशेंट को स्टेबल करना है। अगर वो स्टेबल हो गई है तो टर्म तक लेके जाके कीपिंग हर स्टेबल डिलीवरी करनी है। अगर वो टर्म पे आई है तो स्टेबल करने के बाद उसकी डिलीवरी प्लान करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चलना है। मैम ठीक है, सो गुड। इंडक्शन फुल टेबलेट से इंडक्शन देंगे? इंडक्शन फुल, हाँ, उसी तरह जैसे हम हरे को करते हैं। और मैम एक्टिव मैनेजमेंट में Excuse me. मिसोप्रोस्टोल इन्होंने कहा था यूज करनी है एक्टिव मैनेजमेंट में। सेंटोसिनॉन हम देते हैं लेकिन इन्फ्यूजन नहीं देते। मैम मिसोप्रोस्टोल भी कहा था एक्टिव मैनेजमेंट। ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल इज ओके फॉर हर, बिल्कुल। अर्गोमेट्रिन नहीं देते। ठीक है, अच्छा, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और सेंटोसिनॉन आईएम भी नहीं देते और इन्फ्यूजन भी नहीं देते। ठीक है, चलो, थैंक यू। सो मैं क्लास एंड करने लगी हूँ, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं और देख लेते हैं, संडे को कर लेंगे या इन बिटवीन अगर बीच में टाइम मिलता है ना, तो आपका एक टॉपिक मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया फॉर फाइब्रॉइड इन HMB, तो वो कवर कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। मैडम 37 वीक्स बोलना है डिलीवरी का टाइम? ये मैं आपको बताती हूँ। कार्डियक पेशेंट अगर विदाउट मेडिसिन स्टेबल है तो 38 वीक्स, नहीं सॉरी, अगर विदाउट मेडिसिन स्टेबल है तो 39 वीक्स, अगर विद मेडिसिन स्टेबल है तो 38 वीक्स। समझ गए ना? जी मैम। अगर वो मेडिसिन के ऊपर है और उसके एसिम्प्टोमेटिक है तो 38 वीक्स। अगर वो विदाउट मेडिसिन ठीक है, मेडिसिन में शामिल इवन लेसिक्स भी है, अगर वो डायूरेटिक भी ले रही है तो वो मेडिसिन पे ही है, यानी लेसिक्स की वजह से वो स्टेबल है तो भी 38 वीक्स। लेकिन अगर विदाउट मेडिसिन एसिम्टोमेटिक चल रही है, जैसे कि करेक्टेड माइट्रल डिजीज होती है, माइट्रल वाल्व डिजीज है, या कोई करेक्टेड चीज होती है जो लो रिस्क होते हैं, उनको 39 वीक्स। बहुत सारी किताबों में 40 वीक्स तक लिखा है, बट आई वुड से 39 वीक्स विदाउट मेडिसिन, विद मेडिसिन 38 वीक्स। ठीक है, ओके मैम। चलो, थैंक यू। Yeah, baby, you should go where you wanna go, baby, why you here? Yeah, nobody gonna change, but no for the now, yeah. Like the minute, ko tipu sa dan ko pigi, yeah. Jangan ko balik, abuti banyak ko di sini. Ko balik semua rasa sayang yang saya kasih untukku. Kau ambil hati lalu kau patahkan semua, let it go. No, coba untuk mengerti apa yang saya dapatkan, hanya luka dan sakit. Dan sekarang semua sutra berarti, kau bikin macam samakan hati. Kau coba bermain with your own way, kasih tinggal rasa yang semua mati. And I got making beautiful, but baby you want me to let